Good afternoon, dear students. We are here for audit course 5. First option, that is entrepreneurship development. There are a total 4 different audit courses, and Sangvi sir has already given you the idea about all these 4 courses. I'm here to take an introductory session on one of the course, that is entrepreneurship development. I want to say a thank you to the Sangvi sir for giving me this opportunity to interact with you on this topic. I'm working as a startup innovation cell coordinator, and previously it is called as the EDC coordinator for our department. So this course is given by our SPPO in your final year syllabus, and the course objective for this subject is like the student should know like what are the aspects of entrepreneurship, what are the legalities required when you are developing a product, to understand the IPR, trademarks, copyrights, and patenting. The importance of IPR or patenting is very, very important. Like if you consider the product of iPhone or Apple products like iPhone or आईफोन का या फिर एप्पल का लैपटॉप ले लो, तो ये हर चीज बहुत ज्यादा इसका कॉस्ट होता है, एंड स्टिल एवरीबडी वांट्स इट, and number of feature they have added, but whenever they are making any product they make a patent of it. Almost 1500 plus patent are the Apple company has filed. तो जब भी कोई भी प्रोडक्ट या कोई डिजाइन बनाया जाता है, if you take a patent of it, so you become a owner of it, and that's how you just like protect your idea or protect your product you have developed from your competitor. Then next is to understand how to like make a plan for creating a business or making entrepreneurship. Then you should also understand the finance and management. You should know the teamwork, the leadership qualities in finance, like debit, credits, then your profit loss. You should understand the balance sheets. So these are the main thing, these are the course objective which you should understand. Then after you complete this course, you will like the objective outcome of this course will be that you will having a knowledge of some legalities of while developing a product, what is the process of IPR, trademark, copyright, and patent. Then how to prepare and apply for functional plan, how to manage the entrepreneurship finance, and how to inculcate the managerial skills as an entrepreneur. This is a very important statement for me, and I like it very most. Like जब आप लाइफ में आए हो तो आपने आपकी लाइफ का हर एक मोमेंट, ये आपका जो खुद का ड्रीम है, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए टाइम यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि किसी और का ड्रीम कंप्लीट करने के लिए आप वहां पे काम कर रहे हो, किसी और का ड्रीम कंप्लीट कर रहे हो, और आप आपका पूरा टाइम, पूरी लाइफ आप किसको दे रहे हो? किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए. सो बेटर डोंट वेस्ट इट लिविंग द समवन एल्स लाइफ. किसी और का ड्रीम, किसी और की इच्छा पूरी करने के लिए मत करो. सो दैट एक्चुअली वी आर डूइंग इन अ जॉब. ओके, किसी और का कुछ सपना होता है कि मेरी कंपनी बहुत आगे जानी चाहिए, और उसका सपना पूरा करने के लिए हम वहां पे क्या करते हैं? जॉब करते हैं. हमारा टाइम जनरली दिया जाता है. ओके, दिस इज अ स्टेटमेंट बाय स्टीव जॉब. देन नेक्स्ट, second, who do you know who is this personality? Jack Ma. Yeah, he is the owner of or invented which startup? Alibaba Group. Yeah, very good. So like he has just quoted one line which I like, and I have just added here. If you put bananas and money in front of monkey, monkey के सामने आप बनाना रख दोगे और मनी रख दोगे, तो वो क्या चीज पिकअप करेगा? The monkey will pick up obviously bananas, not a money, right? Because he don't know, like using money he can buy more bananas. पैसों से और ज्यादा बनानास वो खरीद सकता है, ये उसको पता नहीं होता है. ओके, एंड इन रियलिटी इफ यू ऑफर अ जॉब एंड बिजनेस टू पीपल, they would choose a job because most people do not know that business can bring more money than salaries. Profit is better than salaries because salaries can make you living but profits can make you a fortune. Okay, ये उसका बहुत अच्छा स्टेटमेंट है जो लाइक काफी इंस्पायर करता है.
So everyone, you should always compare like what you want in the life. Okay, I just share one small story of a lion with you. Okay, this is a lion who is like जंगल में है. Okay, और जब lion जंगल में होता है वहां पे उसको क्या बोला जाता है? उसको लायन को क्या बोला जाता है? किंग बोला जाता है, राजा बोला जाता है, बिकॉज पूरा जंगल उसका होता है, उसकी ओनरशिप होती है, वो खुद जो चाहे वो कर सकता है, जैसे चाहिए वैसे लाइफ जी सकता है. एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हिज ओन ड्रीम, जो उसको चाहिए वही वो करता है. बट सेम अगर वही लायन सर्कस में पहुंच जाता है तो क्या होता है? क्या आप उसको किंग बोलोगे? वी कैन टेल हिम एज अ किंग बिकॉज वो उसके बॉस के इशारों पे नाचता है ना. जो सर्कस पे उसको ट्रेनर होता है वो जैसे बोलेगा उठ उठ, बैठ बैठ. लाइकवाइज द स्टोरी गेट चेंज. सेम लायन, बट व्हेन इट इज इन ओपन केव, ओके, जंगल में होता है तो उसको हम राजा बोलते हैं. वही सर्कस में चला जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि अरे, क्योंकि he don't have his own decision power to do something. Okay, now this is just a background and now I am moving toward what is actually the entrepreneurship. Entrepreneurship यानी क्या होता है? एक जस्ट छोटा चीज बताती हूँ. When I was in a diploma, it was 1996. I have just taken admission in a diploma and we have one course which is called as a entrepreneurship development course. डिप्लोमा में उन्होंने like MSBT ने इंट्रोड्यूस किया था. एंड दैट टाइम आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस ऑल्सो. मुझे पता ही नहीं था इसको प्रोनाउंस कैसे करते, इसका मीनिंग क्या है. आई डोंट नो एनीथिंग. हमने खाली इसको एक राइटअप के फॉर्म में लिखा था, जस्ट उसको फाइल बनाया, चेकिंग किया, दैट्स इट. टर्म वर्क था एंड खत्म कर दिया. ओके, बट आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. मुझे पता ही नहीं था उस चीज का मीनिंग क्या होता है. नाउ यू आर वेरी like blessed people because you know everything about this word. Number of things are coming nowadays on your WhatsApp. बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टोरीज आते हैं इसके लिए. तो मैं सोचती हूँ कि अगर जब मैं डिप्लोमा में थी, किसी ने मुझे अगर बताया होता एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज कैसे ढूंढे जाते हैं, सो माइट बी माई डेस्टिनी विल बी डिफरेंट देन व्हाट आई एम डूइंग टुडे. So always there is a right time in your life when you can take a very proper decision in the life. Okay, so entrepreneurship मतलब कोई भी बिजनेस जो आप खुद लेते हो उसका डिसीजन, आप वो बिजनेस चलाते हो, रिस्क कैपेबिलिटी आपकी होती है, प्रॉफिट्स आपके आते हैं, यू आर द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस. ओके, तो जैसे मैंने एक छोटा सा डायग्राम लिया है जो मैंने napkinfinance.com करके एक वेबसाइट है. आई जस्ट लाइक दैट इमेज, आई हैव जस्ट एडेड इट हियर. उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत अच्छे से लाइक एक्सप्लेन किया है. वेरी फर्स्ट इज व्हाट इज मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने क्या दिया है, यू हैव टू टेक अ रिस्क इन लाइफ. जिसको बिजनेस करना उसको रिस्क लेते आना चाहिए, क्योंकि देयर आर अप एंड डाउन्स ऑलवेज, नॉट अ स्टेडी थिंग. ओके, अप एंड डाउन्स होता है, कभी बहुत ज्यादा अप, कभी डाउन. You have to plan for your business, then you have to do your business, again grow and do it again and again and again. That's all. And now why you are doing this business, why you are doing the entrepreneurship? Obviously one thing is to make the money. Second thing, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ऐसा बिजनेस भी बनाते हैं जिसमें से पैसे नहीं कमाते. दे सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर कम्युनिटी को, या फिर जैसे सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम उनको दिख रहा है कॉमन, सो दे मेक अ आइडिया जिसमें उस प्रॉब्लम को वो सॉल्व करते हैं, और साइड बाय साइड दे जस्ट अर्न अ मनी ऑल्सो. मोबाइल इज एन इन्वेंशन. दे फाउंड कि लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है जब लैंडलाइन फोन होता है, तो व्हेन दे आर रोमिंग आउटसाइड दे कैन नॉट कॉन्टेक्ट टू एनीवन. ओके, तो ये प्रॉब्लम उन्होंने कम्युनिटी का ढूंढा, दे फाइंड आउट विद अ सॉल्यूशन एंड दे आर मेकिंग अ लॉट्स ऑफ मनी बाय जस्ट मेकिंग दिस थिंग. Internet, again one solution required for community. So that means you have to find an ideas. Okay, so that you can find out with the journals, that you can find out with the people around you just by doing some brainstorming. कुछ क्वेश्चन पूछो खुद को, फ्रेंड्स को, अपने आजू बाजू के लोगों को, क्या चल रहा है मार्केट में, चेकआउट करो कि क्या चीजें हैं जिसकी जरूरत है अभी लोगों को. जस्ट यू हैव टू डू दैट थिंग. देन नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे केस स्टडी ऐड किया है, प्रोजेक्ट एज अ प्रोडक्ट. आप लोगों को स्मार्ट ओनियन वेयर हाउस सबको पता होगा. 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का फर्स्ट विनर है हमारे कंप्यूटर डिपार्टमेंट का. पता है सबको?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, है ना? संदीप का प्रोजेक्ट, आई वाज द गाइड दैट टाइम, ओके। उनको स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में प्राइज मिला था, आईआई में प्राइज मिला था, सीएसआई में फर्स्ट प्राइज, दे हैव गॉट द 7 प्राइज दैट ईयर, हाईएस्ट अब तक का, ओके। और जब सीएसआई में उनको प्राइज मिला तो डिस्क के साथ हमारा सीएसआई प्रोजेक्ट कंपटीशन कंबाइन होता है, तो जो फर्स्ट विनर होते हैं या फर्स्ट 2 विनर होते हैं, तो डिस्क यानी जो टीसीएस इम्पैक्ट स्क्वायर है, उसका जो रिसर्च सेंटर है, वो लोग उनको वहां पे क्या करते हैं, लाइक 6 महीने का इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनकी जो आइडिया है, उनका जो प्रोजेक्ट है, उसको रियल प्रोडक्ट बना के वो मार्केट में ला सकते हैं। तो अब ये मार्केट में आ गया है, बट अनफॉर्चुनेटली संदीप ने ये मतलब उसको जॉब मिल गया, उसने स्विच कर दिया। जब भी एक्चुअली संगमनेर की एक लड़की कल्याणी करके और संदीप, ऐसे 2 जन के प्रोजेक्ट वहां पे सीएसआई में सिलेक्ट हुए थे, और फिर ये वाले प्रोजेक्ट पे यानी स्मार्ट इंडिया अपना जो स्मार्ट यूनियन पे टीसीएस उनको वर्क करवा रहा था। बट जैसे जॉब मिल गया, लाइक संदीप जस्ट क्विट इट, एंड वो जो लड़की थी उसने इसको वो आगे लेके गई। आफ्टर 2 इयर्स बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत सारा रिसर्च किया, मार्केट रिसर्च किया, बहुत सारे काम किया। नाउ उसने पेटेंट फाइल किया इसके ऊपर, टीसीएस के साथ काम कर रही है, एंड ही हैव कम अप विद द इनोवेशन, एंड उसने नाम दिया उसको गोदाम करके, ओके। ये उसका वेबसाइट है, यू जस्ट सी लाइक कितना प्रोफेशनली ही हैव जस्ट डिजाइन ऑल दिस थिंग, कि उसका वेयर हाउस का जो आइडिया था सेम, लेकिन उन्होंने क्या किया, इसको रियल टाइम एक्चुअली टेस्ट किया, फार्मर के यहाँ पे जाके, जिनके पास गोडाउन है वहां पे जाके टेस्ट किए, बार बार टेस्ट किए, उसके जो प्रॉब्लम्स है वो फाइंड आउट किए, अगेन क्या नए आईओटीज के डिवाइसेस हम ऐड कर सकते, क्या नया सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं, मार्केटिंग किया, नंबर ऑफ थिंग ही हैड डन, और जस्ट ही कम अप विद दिस प्रोजेक्ट, ओके। और अभी इसका ये जो गोदाम है ये बहुत अच्छा कर रहा है, शी इज डूइंग अ गुड, बहुत सारा प्रॉफिट शी इज अर्निंग। सो ये मैंने क्यों ऐड किया है कि जब आप प्रोजेक्ट के लिए जाते हो, काफी सारे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, मैडम ऐसा कोई प्रोजेक्ट बताओ जिसको है ना हमको कंपटीशन में प्राइज मिले, ओके। तो ऐसे तो बहुत सारे आप देखोगे, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में अगर आज ही आप देखोगे ना, 2 टीम है, उनको लाइक प्राइज मिला है, सो दे गॉट अ प्राइज इन स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, इन नंबर ऑफ नेशनल लेवल और सम रीजनल लेवल, बहुत सारे कंपटीशन में प्राइज मिलते हैं। बस इज इट अ इनफ, इज इट अ इनफ? खाली 1 ईयर का आपका जो कंपटीशन का प्राइज है ये इनफ नहीं है। यू ऑलवेज थिंक कि जो हमारा प्रोजेक्ट है इसको मुझे एक्चुअल प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल करना है, आई हैव टू अर्न अ मनी बाय दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि आप पूरा 1 साल उसके ऊपर वेस्ट करते हो, या फिर मैं उसको बोलती हूँ इन्वेस्ट करते हो। अगर आपने प्रोडक्ट बना के अर्न किया, यू विल इन्वेस्ट। आपने सिर्फ उसको छोटा प्रोजेक्ट बना के, रिपोर्ट बना के मार्क्स अर्न किए, यू हैव जस्ट वेस्टेड योर 1 ईयर। आपकी यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट ऐड ही इसके लिए किया है ताकि स्टूडेंट उसको एक प्रोडक्ट की तरह देखे, उसमें अर्निंग स्टार्ट करे। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उनका प्रोजेक्ट जो है, एक स्टूडेंट का ग्रुप था जिन्होंने एक मोबाइल ऐप बनाया था करियर गाइडेंस करके, जो ऐप अभी प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम दैट ऐप, अभी भी चलता है। और एक पास आउट स्टूडेंट है हमारा यश मुथा, अभी उसने बहुत अच्छा, वो और उसके फ्रेंड ने मिलकर एक बहुत अच्छा ऐप बनाया है, एंड इट इज अ टेस्टिंग बेस्ड ऐप, जो उनको एक लाइक फिजियोथेरेपिस्ट जो डॉक्टर्स होते उन्होंने लाइक दिया था, एंड दे हैव जस्ट मेड इट, एंड नाउ दे आर अर्निंग अ मनी जस्ट बाय मेकिंग अ लाइक प्रोडक्ट एंड सर्विंग इट टू द पीपल। तो आप ऐसा कोई प्रोजेक्ट लो जिसको आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, या फिर जिसको आप अगर लेके आओ मार्केट में तो आप उससे अर्न कर सकते हो कुछ ना कुछ अमाउंट। तो यू एवरीवन यू जस्ट लाइक रिमेम्बर दिस थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा डेटा एनालिटिक्स का टच यहाँ पे ऐड किया है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है ये ढूंढने के लिए जनरली जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है वो डेटा एनालिटिक्स का कैसे यूज करते हैं, या फिर कैसे डिसीजन लेते हैं कि क्या बिजनेस उन्होंने मार्केट में नया लाना चाहिए, कैसे क्या न्यू वेंचर न्यू स्टार्टअप करना चाहिए। इफ यू सी हियर कि जो वर्ल्ड का लाइक जो पॉपुलेशन है एवरीथिंग, तो वो उसको डिवाइड किया है गवर्नमेंट से, हमने ये वाला जो इमेज है वो मैंने वहां से उठाया है। इफ यू सी कि देर आर टोटल 7 बिलियन पीपल्स आर देयर, एंड व्हाट दे आर डूइंग, इतने सारे पीपल है दुनिया में, क्या करते हैं वो लोग। इफ यू सी 400 लाइक सबसे ऊपर अगर मैं बोलूंगी कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 400 मिलियन पीपल ये क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जिसमें से
Then next, 430 million people are unemployed. They are doing nothing. 577 million peoples are older, means उनकी एज 64 से अब है, जो कुछ नहीं कर सकते. सो सी इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि इतने सारे ओल्डर लोग हैं. क्या हम ऐसा कोई प्रोडक्ट ला सकते हैं, ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई ऐप बना सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो उसको यूज कर सके. देन 800 मिलियन पीपल आर डूइंग वर्क इन द इंडस्ट्री. 1.4 मिलियन आर वर्किंग इन एग्रीकल्चर. ये बिलियन में है. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज एग्रीकल्चर. सो यू शुड थिंक फॉर सम ऐप और समथिंग यू कैन मेड फॉर एग्रीकल्चर. कुछ नया इनोवेशन लेके आओ. 1.7 बिलियन वर्क इन अ सर्विस, जो जॉब में है. एंड 1.9 मिलियन बिलियंस आर टू यंग, जिनकी एज 0 से 15 साल के बीच में. तो क्या हम ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं क्या मार्केट में जो यंगस्टर्स के लिए यूज हो सकता है? इतना ज्यादा यंगस्टर अवेलेबल है. और नाउ एवरीथिंग इज ग्लोबली अवेलेबल. आप देखो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, दे आर डूइंग द बिजनेस ऑनलाइन. पूरा ग्लोबल, पूरी वर्ल्ड उनके हाथ में है. कोई भी चीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में बेच सकते हैं, नॉट अ लोकली. तो आप पूरा जो है चीज ले सकते हो. नाउ नेक्स्ट, I have just quoted here country by population. You can see India is the largest population country and second like China और India. ये आप देखोगे तो इसके लिए आप अगर इंडिया में कोई भी अच्छा प्रोडक्ट अगर आप लेते हो तो इतना पॉपुलेशन है कि आप उसको कितने भी लोगों तक स्केल कर सकते हो, लेके जा सकते हो. ओके, यूनाइटेड स्टेट से भी कितना बड़ा है. ओके, इंडोनेशिया. यू कैन सी इंडिया कितना बड़ा कंट्री है पूरे वर्ल्ड में. So you have a very good opportunity in that. Again, I have just taken one image of the world as 100 people. अगर आप पूरे वर्ल्ड को सिर्फ सोचो कि 100 पीपल है, तो 100 पीपल का डिवीजन कैसे होता है? 100 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो. अगर 100 पीपल है तो 50 मेल और ऑलमोस्ट 50 फीमेल है. अभी हमारे कंट्री में ये रेशियो अलग है, बट ओवरऑल वर्ल्ड में अगर देखें तो जितने मेल है उतने ही फीमेल है. अगर एज वाइज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एज वाइज अगर आप देखोगे तो 26% पीपल ये 0 to 15 एज के है. 66% आर फ्रॉम 15 to 64. लाइक वाइज रीजन वाइज कितने लोग हैं, लिटरेसी वाइज कितने लोग हैं, कॉलेज गोइंग लोग कितने हैं, इंटरनेट यूज करने वाले कितने, फोन्स को यूज करने वाले कितने हैं, वाटर पॉवर्टी रेशियो के बिलो अबो कितने लोग हैं, न्यूट्रिशियस लोग कितने हैं, इससे कितने लोग हैं जिनको हाउसिंग अवेलेबल है और हाउसिंग अवेलेबल नहीं है, लैंग्वेज अलग अलग बोलने वाले लोग, एरिया वाइज डिवाइडेड लोग, रूरल में कितने लोग हैं, अर्बन में कितने हैं. अगर आप कोई चीज प्रोडक्ट बना रहे जो रूरल एरिया के लिए, यू कैन सी 49% of our population, world population is still living in a rural area. Okay, so again there is a very huge opportunity for if you are thinking some of the business in a rural area or in an urban area. Likewise, this is a graph. Okay, now you have an n number of business opportunity after the post COVID-19. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जैसे कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का बिजनेस जो है कम हो गया, ठप हो गया, बहुत सारा बिजनेस बंद पड़ गए. ओके, व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज दे हैव नॉट चेंज. जैसा मार्केट चेंज होता है वैसे आपको चेंज होना पड़ता है. ओके, तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आप खुद देख रहे होंगे कि कोविड-19 में बहुत सारे लोगों ने कुछ अलग अलग टाइप के बिजनेस शुरू किए जो पहले नहीं थे, एंड दे आर डूइंग, दे हैव अर्न 4 to 5 times ऑफ प्रॉफिट्स. ओके, इन दिस सिनेरियो आई हैव जस्ट एडेड, जैसे एक मैंने वेबसाइट से मुझे जो अच्छा लगा, यूज्ड yourstory.com. अगेन इट इज अ वेरी गुड वेबसाइट जहाँ पे आप बहुत सारी यंगस्टर की स्टोरीज पढ़ सकते हो जिन्होंने खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है. ओके, जोश टॉक करके है यूट्यूब पे, दैट इज अगेन अ गुड लाइक प्लेटफॉर्म टू सी द न्यू स्टार्टअप्स हु हैव स्टार्टेड एंड हाउ दे हैव ग्रोन अप. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने जैसे बिजनेस आइडियाज दी कि जो पहले नहीं थे, लेकिन अभी आप देखोगे तो मास्क का बिजनेस, हर मेडिकल में आप, नाउ यू गो ऑन अ मॉल्स, यू कैन गो ऑन अ kirana store or you go on a medical store, you will find out that everybody is started a new business. एक छोटा कॉर्नर उन्होंने ऐड कर दिया जिसमें उन्होंने मास्क को स्टोर किया है. देन सर्जिकल गाउन्स होते हैं जो पहले डॉक्टर्स को नहीं लगते थे, बट नाउ इट इज एवरी डॉक्टर रिक्वायर दिस सर्जिकल गाउन्स. कोविड की वजह से ये चीज यूज होता है. दे आर यूजिंग पीपी किट्स. पीपी किट में बहुत सारी चीजें आती है, लाइक आपके हैंड ग्लोव्स आते हैं जो यूज एंड थ्रो होते हैं, गॉगल्स, फेस शील्ड, गाउन्स, हेड कवर्स, शू कवर्स एंड एन नंबर ऑफ थिंग. बहुत सारी चीजें फ्रॉम टॉप, मतलब टो से लेके तो हेड से लेके तो टो तक
हर जगह पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये बहुत सारी चीजें जो पहले नहीं लगती थी, नाउ द इंडस्ट्री इज डिमांडिंग टू मेक अ प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड सप्लाई टू द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज। हैंड सैनिटाइजर पहले था, बहुत कम लोग यूज करते, नाउ इट इज एवरी होम यू विल फाइंड आउट दैट हैंड सैनिटाइजर इज देयर। ओके, देन नेक्स्ट सोप, जो आयुर्वेदिक या सैनिटाइज सोप होते हैं, उसका बिजनेस बहुत बढ़ गया है अभी के डेट में। देन टिश्यू पेपर्स या फिर यूज एंड थ्रो मटेरियल। नाउ यू गो ऑन एनी ऑफ द रेस्टोरेंट, ऑल रेस्टोरेंट्स आर क्लोज डाउन। ओके, वहां पे बैठ के आप खा नहीं सकते हो, खाली कैफेटेरियाज या मैकडोनल्ड्स जैसे खाली ओपन है। तो अभी मैक्सिमम वहां पे क्या चल रहा है, पार्सल पॉइंट चल रहा है। यू नो पार्सल है मतलब आपको क्या चीज प्रोवाइड करना है, यूज एंड थ्रो मटेरियल। आई वांट टू कोट, लाइक हमारा एक एल्यूमिनी है 2011-12 पास आउट बैच, आकाश छाजेड़ करके। ओके, ही गॉट अ वेरी गुड लाइक जॉब इन अ मॉस्किटो, बहुत 3 कंट्रीज में वो जाके आया था, बट ही हैव जस्ट स्टार्टेड हिज ओन फैक्ट्री फ्रॉम 3 years बैक, जिसमें वो लाइक पेपर प्लेट्स या फिर यूज एंड थ्रो ग्लासेस जो होते हैं वो बनाता है। तो मेरी जस्ट उसके साथ अभी बात हुई थी 2 महीने पहले। ही टोल्ड इतना बिजनेस उसको मिला है ये पूरे कोविड के इसमें, क्योंकि सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो यूज एंड थ्रो चीज के लिए। आप कोई भी कंपनी में जाओ, कोई भी कैंटीन में जाओ, एवरीबडी इज नाउ ऑफरिंग यूज एंड थ्रो लाइक मटेरियल। सो इसका बहुत डिमांड है यहाँ पे। लाइक आयुर्वेदिक कार्ड आपने सुना होगा, आयुर्वेदिक स्नैक्स हो गया, आयुर्वेदिक ड्रिंक्स हो गए। सो दीज आर द न्यू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी जो मार्केट में है, जो पहले नहीं थे। देन नंबर ऑफ थिंग्स अलग अलग, लाइक आप अपॉर्चुनिटी और क्या आप देख सकते हो जो बिजनेस की हो सकती है। जैसे आप देखोगे, शायद लास्ट वीक में ही सर ने 3D प्रिंटिंग का आपके लिए एक सेशन अरेंज किया था। सो नाउ इट इज 3D प्रिंटिंग इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मैंने इसके लिए ऐड किया क्योंकि आप लाइक कंप्यूटर के बैकग्राउंड के, IT बैकग्राउंड के हो। सो क्या चीजें है जो ज्यादा अभी चलने वाली है, AI बेस्ड है। तो बहुत सारे लोग के मैंने देखे प्रोजेक्ट टॉपिक AI एंड मशीन लर्निंग बेस्ड है, तो दे आर हैविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, नॉट अ प्रोजेक्ट। ओके, सो यहाँ पे मैंने नीचे डाला है कि क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाओ जिसमें लाइक बहुत सारे डिफरेंट बिजनेस को AI का यूज हो सकता है। लाइक कोविड के इसमें लाइक रोबोटिक्स का यूज, काफी सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज है जिसमें उन्होंने रोबोट्स रखे जो टेम्परेचर चेक करते हैं या सैनिटाइजर देते हैं आने वाले लोगों के लिए। तो दैट इज अ रोबोटिक्स दे हैव यूज। डिजिटल सिग्नेचर, तो एक स्टूडेंट है हमारा लाइक दूसरे डिपार्टमेंट का, जिसने अभी कोविड में खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसमें वो अगर कोई बिजनेस कर रहा है या फिर आपको लगता है कि आपका सिग्नेचर है या फिर आपका बिजनेस जो है उसका एक छोटा स्मॉल वेबसाइट ऐसा बनाना चाहिए, बट दैट वेबसाइट इज इन द फॉर्म ऑफ विजिटिंग कार्ड। तो विजिटिंग कार्ड जैसे आप आपका कॉन्टेक्ट नंबर जब आप शेयर करोगे, तो कॉन्टेक्ट नंबर के साथ आपके जितने बिजनेस डिटेल या फिर आप क्या काम करते हो, एवरीथिंग आप उसको शेयर कर सकते हो। सो यू कैन मेक इट फॉर योर रिज्यूम, कि जैसे आपने किसका आपका कॉन्टेक्ट नंबर जिसके साथ शेयर किया, आपका पूरा रिज्यूम उसको फॉरवर्ड हो सकता है। तो लेकिन क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन रिटेल शॉपिंग, आप गेम बना सकते हो, क्योंकि अभी घर पे बैठे बैठे लोग सबसे ज्यादा गेम्स खेलते हैं। सो फाइंड आउट हाउ यू कैन मेक अ गेम्स। स्क्रैच इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, पाइथन इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, जिसमें आप अलग अलग गेम बना के ऑनलाइन प्ले स्टोर पे डाल सकते हो। वर्चुअल ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए जो गॉगल्स लगते हैं, बहुत सारे लोग अभी घर पे है तो लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी वाले गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जिसकी वजह से उसके लिए लगने वाले गॉगल्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। ग्रोसरी ऑनलाइन चल रहा है। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, आपको सिर्फ आजू बाजू में देखना है एंड यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ थिंग। ओके, यू नो दैट वी हैव, अवर कॉलेज हैव स्टार्टेड लाइक बहुत पहले से ही EDC एक सेल है जो स्टार्ट किया था, लाइक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल। लेकिन अभी इसका नाम जो है ये चेंज हो गया है, SI&C, दैट इज स्टार्टअप एंड इनोवेशन सेल, जिसमें ये पूरा AICTE मतलब आपकी यूनिवर्सिटी ने ही, पुणे यूनिवर्सिटी ने कंपलसरी किया है हर कॉलेज में ये सेल होना चाहिए, जिसमें अगर किसी स्टूडेंट के पास कुछ इनोवेटिव आइडिया है, कुछ स्टार्टअप की आइडिया है, तो वो इस सेल के पास आके उसकी आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, उनका गाइडेंस ले सकते हैं, उसको ब्रेनस्टॉर्मिंग किया जाएगा, उनको जो भी हेल्प चाहिए वो कॉलेज की तरफ से, ये सेल की तरफ से उनको प्रोवाइड की जाएगी। I am working as a coordinator for this cell for our department. Every department is having a 111 coordinator, so you can take a benefit of it.
इसके अलावा मैं एक चीज शेयर करती हूँ तुम लोगों के साथ कि आपके क्लास में 3 स्टूडेंट है, और भी बहुत होंगे लेकिन जो मुझे पता है, ओके, अगर आपके इसमें से भी कोई स्टूडेंट है जिन्होंने ये पोस्ट कोविड का जो लॉकडाउन पीरियड था 4-5 मंथ्स का, आपने अगर खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट किया होगा या खुद का कोई एक चीज ऐसा स्टार्ट किया होगा जिसमें आपने अर्निंग करना स्टार्ट किया होगा, तो प्लीज आप उसका इंफॉर्मेशन मुझे दो या मुझे पर्सनली कांटेक्ट करो। तो दिनेश रुनवाल इज वन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम योर क्लास हु इज हैविंग हिज ओन, उसका खुद का एक शॉप है, उसका नाम है नवका सेल्स एंड सर्विसेज सीसीटीवी सर्वेलेंस। ये सिर्फ उसने अभी नहीं स्टार्ट किया, उसका 2 इयर्स मतलब लास्ट 2 to 3 इयर्स वो उसका कॉलेज प्लस बिजनेस ये दोनों साइमल्टेनियसली वो करता है। आपको नाम से समझ गया ही होगा कि वो क्या करता है। उसके पास सीसीटीवी के रिलेटेड मटेरियल या कंप्यूटर के रिलेटेड जो भी ये मटेरियल लगते हैं उसका उसका पूरा ये बिजनेस है। ये उसका बिजनेस का कार्ड है उसका खुद का, यहाँ पे जो उसने शेयर किया है। सेकेंड जो है तुम्हारे क्लास है सारथी भावसारी। आपको पता है कि लास्ट ईयर भी 6 मंथ वो इंटर्नशिप में था टीसीएस के साथ, और टीसीएस में डेस्क के अंदर जिनको भी स्टार्टअप करना है उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और जो बिजनेस है उसको नर्चर करने के लिए पूरा ट्रेनिंग जो है वो दिया जाता है। सो करंटली वो एक चीज पे जो काम कर रहे हैं दैट इज आईसी अंडर डिजिटल इम्पैक्ट स्क्वायर अ टीसीएस फाउंडेशन इनिशिएटिव। उनका एक इनिशिएटिव है जिसके ऊपर वो काम कर रहा है, और इसको एज अ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि इसको ऐड कर रहे हैं। एक 1 मिनट, सिर्फ संघवी सर का फोन आ रहा है, जस्ट 1 मिनट। हेलो सर। यस, हाँ नहीं सर चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेशन स्टार्ट है। यस या हाँ हेलो ओके। सो जिसमें ये टीसीएस में जैसे काम कर रहा है अभी, इसका जो मेन चीज है जिसमें उन्होंने जो चाइल्डहुड एकदम बहुत छोटे रूरल एरिया में आंगनवाड़ी सुना होगा आप लोगों ने, आंगनवाड़ी नाम पता होगा कि छोटे छोटे गांव में एक आंगनवाड़ी होती है जहाँ पे एकदम छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको एजुकेशन दिया जाता है, बट दैट एजुकेशन इज नॉट दैट अप टू द मार्क। गवर्नमेंट जितना पैसा देती है या जितना सोचती है उतना वहाँ पे प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। तो दे हैव टेकन इनिशिएटिव, दे हैव गॉन द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, और उन्होंने एक ट्रिब्यूट एरिया मतलब जो आदिवासी एरिया है वहां पे एक बहुत अच्छा स्कूल था, वहां पे जाके उन्होंने उनका सिस्टम चेक किया था कि वो कैसे पढ़ाते हैं। हर एरिया में गए, कहाँ पे क्या अच्छा चीज है, कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, एंड दे हैव जस्ट डन अ रिसर्च एंड दे आर गोइंग टू कम अप विद अ प्रोडक्ट। एक नया एक इनिशिएटिव के साथ कम अप होने वाले कि आंगनवाड़ी जो है इसका पूरा सेटअप क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। दिस इज अ वेरी डिफरेंट आइडिया बाय डिस्क। Now third one, you know the Shubham Chavan, he is also working from last year on one of his project, और उसका जो फर्म का नाम है दैट इज SI&C, और उसने कभी फिलहाल मोबाइल ऐप लॉन्च किया दैट इज अ कृषि आके करके मोबाइल ऐप है जिसका लिंक मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, एंड आई विल जस्ट शेयर यू, जस्ट गो थ्रू इट। उसने पूरा एक साल उसने सर्वे किया जितने फार्मर्स है आजू बाजू में सबका क्या प्रॉब्लम उनको होता है, पेस्टिसाइड जब खरीदना होता है या कोई भी प्रोडक्ट खरीदना या सेल करना, कौन से मार्केट में कौन से एप्स अवेलेबल है, उसमें क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है। हर एक गांव में फार्मर से जाके उनकी नीड ली, एंड आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग ही कम अप विद अ वेरी गुड। देखो हर एक आप तीनों अगर देखोगे तो उन्होंने खुद का लोगोज जो है लोगो डिजाइन किया है, नाम डिजाइन किया है, उसका ऐप वो मार्केट में लेके आए। ये उसके कुछ मैंने स्क्रीनशॉट ऐड किया ऐप में जिसमें ऑनलाइन पेस्टिसाइड या कोई भी प्रोडक्ट है जो फार्मर परचेज करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल विद दिस। तो ये एक एंटरप्रेन्योर की डायरी है जो मैंने बनाई है, तो आप देखोगे 39 पेज का। मैंने सिर्फ अभी तक आप लोगों को आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो है वो बताए हैं इसके पहले। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कुछ फोटोग्राफी का या किन्होंने ग्रोसरी शॉप का या किन्होंने कोचिंग क्लासेस लेते हैं या कोई डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं। आई विल शेयर विद दिस डायरी विद इन 2 to 3 days। कुछ थोड़े स्टूडेंट्स है जिनका डेटा अभी तक हमारे पास नहीं है। हम जब से हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ 2007-8 से लेके अब तक जितने स्टूडेंट है जो खुद का कुछ स्टार्टअप कर रहे हैं, स्टिल दे आर सर्वाइविंग, दे आर डूइंग दैट थिंग, तो उनका एक हम छोटा डायरी लेके आ रहे हैं जिससे मोटिवेशन मिले उनको भी और बाकी स्टूडेंट को भी जो इसमें काम करना चाहते हैं। सो आई विश कि आज के सेशन का कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिला होगा,
एंड यू विल थिंक अपॉन दैट कि आपका गोल सेट होना चाहिए. एंड इफ और एक शायद आपकी क्लास में है, आई थिंक सो, आकांक्षा, आई मुझे श्योर नहीं है, जो लाइक मेहंदी का करती है काफी चीजें. तो इसे आपके क्लास में मुकुंद मुंदड़ा ने कांटेक्ट किया था. ही इज डूइंग सम वर्क विथ हिज लाइक ब्रदर और पार्टनर, जिसमें वो कुछ वेबसाइट बनाने का कुछ काम है जो पार्ट टाइम कर रहा है. तो बहुत सारे लोग होंगे जो अभी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे, मनी अर्न कर रहे होंगे आपके ये ड्यूरिंग द कोविड. अगर आप नहीं कर रहे हो, डोंट वेस्ट योर टाइम. आप घर पे हो, कॉलेज सिर्फ 9:30 से 2:30 या 3 बजे तक होता है. यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम. एवरीवन शुड अर्न समथिंग. ओके, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढो, उसको लेके आओ, अर्न करो. इफ यू सीन लाइक कि ओके, एक फॉर्म रहेगा आज के अटेंडेंस के लिए. वो फॉर्म मैं आपके लाइक ग्रुप पे शेयर करूंगी, बी कॉम के ग्रुप पे. तो खाली आप उसको फिल कर देना. और दूसरा चीज, थैंक्स टू सर संघवी सर कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया आपके क्लास पे ये सेशन लेने का. आपके पास किसी के भी कुछ आइडियाज होंगे तो मुझे कांटेक्ट करो. अगर आपने कुछ काम किया होगा, अर्न किया होगा, तो भी प्लीज मुझे कांटेक्ट करो, ताकि उस डायरी में भी आपका भी नाम और फोटो में डालूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा. सो थैंक यू सो मच. आई एम जस्ट एंडिंग दिस मीटिंग.